Hello class 12. Let's begin with a new topic, that is electric potential at a point due to an electric dipole. As you all know what dipole is a system of two charges which are having equal magnitude of charge with opposite polarity, separated by some distance, let it be 2a. So this part is a and again this part is also a. Okay, so as we are talking about electric dipole, first let's mark the direction of the electric dipole moment, that is from negative to positive. So let's make electric dipole moment ki direction, that is from negative to positive. Again we are given with a point that at point P you need to find out the electric potential. So as we all know that whenever we are talking about an electric dipole, we always measure all the distances from the midpoint of the electric dipole distance. So this distance is 2a, so we are always going to locate that point from the middle part of this dipole, that is this point O. This line is making angle theta with the axis of the electric dipole. Done. So we are provided by three major information, that the dipole length, thick, this theta and this a, along with the magnitude of the electric charges. Done. So now we need to find out the electric potential at that point P. So electric potential at that point P will be equal to the scalar addition of the electric potential by positive charge at this point P plus the potential by this negative charge at that particular point P in algebraic manner, that is V is equals to V1 plus V2, where V1 is the electric potential produced by a positive Q charge at point P and Q2 is the electric potential produced by minus Q charge at point P. Done. And we are going to add them algebraically. We are not going to do any vector addition over here, as we all know that V is a scalar quantity. So for finding out V1 and V2, we need to know the distance between the point A and point P, that is R1 and R2 respectively. Like let this distance be R1, so let us name it R1, whereas this distance from B to P, let us name it R2. Okay, but this is not provided to us that what R1 is and what R2 is. So for that thing we need to find out the relation between R theta A and R1. So we can find out all the necessary distances by the same. Okay, so for V1 is equals to KQ divided by R1 plus V2 is K minus Q divided by R2. So on solving I can write that K कॉमन लिया, Q कॉमन लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now we need to find out 1 upon R1 and 1 upon R2. Okay, we are not concerned about R1 and R2. Now we are concerned about 1 upon R1 and 1 upon R2. So let's begin. Let's first do a basic thing, a few important theorems and formulas which are going to be useful for you in this upcoming derivation. Okay, first is cos law. क्या cosine law? Cosine law क्या होता है? Let's talk about it. Like if it is a triangle and it is that angle theta, then the length of this side is A, of this side is B and this side is C. Then I can say that cos theta is equals to B square plus C square minus A square divided by 2BC. Done. This is cos law. ठीक है, या cosine law, जो भी आप लोग इसको कहना चाहें. मैथ्स वालों को ये चीज़ ऑलरेडी आती है, लेकिन बायो वालों को ये चीज़ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बायनोमियल थ्योरम. बायनोमियल थ्योरम हमें फिजिक्स में जितनी काम आ रही है मैं सिर्फ उतना सिखा रहा हूँ. आप कह सकते हैं मैं कोई छोटा सा फॉर्मूला रटा रहा हूँ, कंप्लीट मैं इसका अभी कुछ भी नहीं देना चाहता. तो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n is equals to 1 plus nx. ठीक, दिस इज बायनोमियल थ्योरम वेयर x is a very small number. ठीक है, 1 प्लस के साथ मगर n की पावर इस टाइप से कोई दिया जाता है, वेयर x is a very small number. सो उस केस में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. तो ये बायनोमियल थ्योरम है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन फिजिक्स. मैथ्स के अंदर ये डिटेल आपको चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में हमें इसकी इतनी ही जरूरत है, इससे आगे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. डन. So let's get on the journey for finding out
द डिस्टेंसेस। हम वहां पे जो डेरिवेशन छोड़ के आए थे वहां पे हम इस AP के डिस्टेंस दैट इज R1 जिसको हमने नाम दिया एंड BP के डिस्टेंस दैट इज R2 जिसको हमने नाम दिया। सो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ये चीज़ हमें पता नहीं चल रही थी कि अब हम इसके साथ में क्या करें। सो लेट्स बिगिन विद दैट। डन। सो R1 अगर मेरे को निकालना है तो आई नीड टू अप्लाई द कॉस लॉ इन ट्राइंगल AOP। सो इन ट्राइंगल AOP cos theta, this cos theta is equals to a square plus this, ये इसका b हुआ तो that plus r square minus इसके सामने वाली साइड that is r1, तो minus r1 square whole divided by 2ar. On solving I am going to get 2ar cos theta is equals to a square plus r square minus r1 square, r1 को इधर ले आए तो r1 square is equals to a square plus r square minus 2ar cos theta. Now r1 square is equals to r को square को कॉमन ले ले तो you are going to get a square divided by r square plus 1 minus 2a by r cos theta. Okay, so this term is going to be equals to 0 approximately because I can say that a is very less than r because I am talking about this. आपको यहाँ पे लग रहा है कि a भी बहुत ही लंबी लेंथ है बट ये सच नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डायपोल, तो डायपोल के अंदर ये मैक्सिमम डिस्टेंस मैं आपको शो कर रहा हूँ mm में डिस्टेंस होती है, सिर्फ मिलीमीटर्स में डिस्टेंस होती है, जबकि जो P पॉइंट है, ठीक है, जो ये P पॉइंट मैंने बनाया है इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है, बहुत दूर तक इस तरह से होता है। तो अगर सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में भी अगर आपका ये डिस्टेंस है r और ये जो आपका डिस्टेंस है डायपोल के बीच में दैट इज इन mm मैक्सिमम, तो mm और मीटर के अंदर 1000 का डिफरेंस आ जाता है, तो बहुत ही बड़ा ये डिफरेंस है। सो आई कैन से दैट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मैंने इस चीज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सो अब मेरे पास जो बचा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा। डन। नाउ अब मैं ले लेता हूँ इनका इनवर्स और ले लेता हूँ इसका रेसिप्रोकल, तो आई एम गोइंग टू गेट r1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r इंटू 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा टू द पावर -1/2। -1/2 कैसे आया, पहले मैंने इसका रूट लिया फिर मैंने इसका इन्वर्स किया, तो यहाँ से मुझे चीज़ मिल गई। नाउ अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बाय अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, इसके अंदर तो ये a माइनस एक्स वाला कुछ टर्म मिला तो ये नीचे आ जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 से गया 2 a बाय r cos थीटा। डन। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से अगर आप दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर नीचे वाले ट्राइंगल लगाएंगे तो वहां पे आपको आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है। सेम तरीके से आप पूरी इक्वेशन लगाएं, ठीक है, तो वहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो लिख देता हूं, माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसा माइनस क्यों आया, बिकॉज cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है। डन। इसीलिए इस तरीके से आपके पास आया है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे सेम बायनोमियल लगा के तो आपको मिलेगा 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r 1 माइनस a बाय r cos थीटा। देन लेट अस नेम इट इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी दैट 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r 1 माइनस a बाय r cos थीटा। एक बार आपको प्लस मिला, एक बार आपको माइनस मिला। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा था। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, मैंने सेकंड वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, यहाँ पे 180 माइनस थीटा था। डन। सो आपका लास्टली दो इक्वेशन बचती है दैट 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस a बाय r cos थीटा, यहाँ पे मिलती है 1 अपॉन r 1 माइनस a बाय r cos थीटा। सो लेट्स जस्ट पुट इट इन आवर मेजर इक्वेशन दैट इज k q, अच्छा 1 अपॉन r1 दैट इज 1 अपॉन r 1 प्लस a बाय r cos थीटा एंड here I am going to write minus 1 upon r
1 माइनस ए बाय आर कॉस थीटा। डन। 1 अपॉन आर को कॉमन ले लें तो यू आर गोइंग टू गेट के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ओवर हेयर वी आर गोइंग टू गेट 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा। Done. So further solving it, I am going to get kq divided by r, 1 से गया आपका 1, 2 a by r cos theta. So अगर मैं इसे आगे लिख दूँ तो I can get kq divided by r square into 2a cos theta. इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू योर व्हाट 2QA ठीक है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आपने देखा होगा मैंने 2QA अलग से क्यों लिखा, तो आपको याद होना चाहिए दैट P दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P is equals to 2AQ. So I can write that this is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P by R square cos theta. Okay, now this is the electric potential at that particular point P. Okay, so यहाँ पर मेरे पास एक टर्म आया है P cos theta. So if I want to discuss about P cos theta, I need the diagram again. So if I am going to see this diagram properly, ठीक है, patiently, then what I am going to get is that this is r vector. Okay, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी r cap की, तो r cap is the direction from O to P. तो O to P जो डायरेक्शन है, this is r cap and P cap is this, और my direction of the vector P is this. अगर मैं आपको लिखूं that P vector dot r cap is equals to क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप इंटू कॉस थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज P, मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप मतलब यूनिट वेक्टर, मतलब उसका यूनिट क्या आएगा आपका रिजल्टेंट 1 आएगा, तो 1 इंटू कॉस थीटा. सो इट विल बी P cos theta. So I can say that P cos theta is equals to dot product of vector P and r कैप. सही बात है. तो बिकॉज P और R के बीच में एंगल कितना है आपका थीटा, दिस इज P एंड दिस इज R, उसके बीच में एंगल कितना है आपका थीटा. सो यूजिंग दिस रिलेशन इन माय फाइनल रिजल्ट व्हाट आई कैन से दैट वी कैन आल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद R कैप डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. डन. So this is how our final result came, that V is equals to 1 upon 4 pi P dot R cap divided by R square. Okay, जैसा आपको पता होगा that generally V depends 1 by R के proportion, लेकिन in this case V is directly proportional to 1 upon R स्क्वायर या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आ रहा है, जबकि नॉर्मली वी किसके होता है आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है. सो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए क्या बनाता हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, तो वो किस तरह से बनेगा, लेट्स डिस्कस दैट. इफ दिस इज वी एंड दिस इज योर आर, तो मेरे को इस बार क्या मिलेगा, एक हाइपरबोला मिलेगा इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. डन. सो दैट्स फॉर दिस. सो अभी हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात अगर करें, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. स्पेशल केसेस का मतलब क्या है कि एक्सिस के ऊपर फर्स्ट थिंग और इक्वेटोरियल पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होने वाला है. सो एक चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस के ऊपर डिपेंड कर रही है. लाइक P वही रहने वाला है, R वही रहने वाला है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर है, कॉस थीटा के ऊपर है. सो इफ ऑन चेंजिंग थीटा फ्रॉम सम थीटा 90 डिग्री हम लोग इस तरह से अगर करते हैं तो किस तरह से चीज़ें चलेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. लाइक अगर इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आ जाते हो तो इस केस में आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, जबकि इस तरीके से अगर मैं इस चीज़ को रखता हूँ
तो मेरा एंगल कितना बनेगा P के साथ में 0 डिग्री, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर, P भी इसी डायरेक्शन के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो एक्सियल पॉइंट विद एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। वेयर इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, अगर मेरा पॉइंट इस एक्सिस पे यहाँ पर कहीं हो, एक्सिस इज सेम बट पॉइंट क्या हो, इस साइड में हो, तो दे आर एंटी पैरेलल, दिस इज एन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज एन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस माई एंगल विल बी 180 डिग्री, वेयर एज इफ आई डू इट लाइक दैट, तो यहाँ पर भी आपका एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सो लाइकवाइज में चीजें चेंज होती है। आपको पता ना चाहिए कि अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ भी चीज आएगा तो हमेशा किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, चेंज होगी वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो लेट्स टॉक अबाउट द टू important formulas, that is for theta is equals to 0 degree, V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर cos 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में पता है 1 होता है, तो इट इज विल बी इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught P by R स्क्वायर। डन, दिस इज योर मैक्सिमम वाला केस। ड्रिंक, ये वाला कौन सा केस है आपका, मैक्सिमम वाला केस है। एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्री, तो v इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है आपका, -1 होता है, दैट्स व्हाई। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, माय v is going to be equals to what, 1 upon 4 pi epsilon naught P divided by R square multiplied by your cos 90 degree। cos 90 degree होता है आपका 0, तो this is going to be 0 and this is the minimum condition। ठीक, तो ये मैक्सिमम दो, ये मिनिमम, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, मैक्सिमम मुझे मिल रहा है, तो किसी में मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। सो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर